So today we are going to start with inductive effect. Okay. So inductive effect, that is I effect, and it is given by Ingold. It is given by a scientist named as Ingold. Ingold is the one who find out this inductive effect. Now, what happens, because sometimes whenever there is any element which is attached to carbon chain, the element may be sometimes is highly electropositive in nature, or it may be highly electronegative in nature. Because of this thing, what happens? A polarity is developed. So polarity developed in carbon-carbon chain due to shifting of sigma electron by the group or the atom present in the carbon-carbon chain is known as inductive effect. Clear? And this can happen in two ways. It can happen when a highly electropositive element is attached, or it can happen when a highly electronegative element is attached. Suppose suppose this is A, this is highly electronegative element is attached. So what will happen? This highly electronegative element try to the one which is having high electronegativity. So it means their tendency to attract shared pair of electron is more. So therefore, they are going to attract the shared pair of electron. It means they will get a partial negative charge, and carbon will get a partial positive charge. And hence again, on second carbon, there will be more partial positive charge, little less. And on third carbon, there is also little less. And on fourth carbon, this won't be there, any charge. So charge on first carbon is partial, little bit more partial, is more than that of the second, and the least on the third one. In a similar manner, suppose this A element is electropositive in nature, or the electronegativity is very, very less. So what will happen? Carbon has a tendency to attract the shared pair of electrons. So this element will gain a partial positive charge, and carbon will gain the negative charge. Clear? Then carbon 2 will have little bit of negative, and carbon 3 will have little bit of negative charges. So in this way, we can say that carbon 1 will have the highest partially negative charge, then carbon 2, and then the least is with carbon 3. Fine. As the magnitude of I effect, this magnitude of I effect decreases as the distance from the atom or this group will increase. जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड कार्बन, ये इफेक्ट खत्म होता जाएगा. और आप कह सकते हो that after around 3 or 4 carbon, this effect becomes neutralized, or this effect is no longer there. ये इफेक्ट नहीं रहता है. And this is a permanent effect. ये हमेशा ही, अगर जब तक एलिमेंट के साथ में, सॉरी, कार्बन के साथ में ये पर्टिकुलर ग्रुप अटैच होता है, this effect will remain there. Okay, clear? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो जाता है इस वजह से ही. Is there any problem up to this point? ओके जी, चलो इसके बाद अब हम लोग आगे से बढ़ते हैं. Now it is measured with respect to hydrogen atoms, so I effect of hydrogen is considered to be 0. ये जो हमने एलिमेंट ए हमने जो जोड़ा है यहाँ पे, ये एलिमेंट की ए की जगह पे कोई भी ग्रुप हो सकता है. ये कोई भी ऐसे OH है, COOH है, ये HCl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, कुछ भी हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है. हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनके हम लोग इसको मेजर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को. सो हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम 0 कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स. क्लियर? चलिए, देन अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ आई इफेक्ट. तो टाइप ऑफ आई इफेक्ट कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ आई इफेक्ट बनता है? इट डिपेंड्स अपॉन ग्रुप अटैच्ड. इट डिपेंड्स अपॉन ग्रुप और एटम attached to
attached to carbon chain. सबसे पहले आता है minus I effect. Now, when some atom which has greater tendency to attract shared pair of electrons of the covalent bond are attached to carbon-carbon chain, then we have minus I effect. इसका मतलब ये है कि जब किसी कार्बन-कार्बन चेन में कोई ऐसा एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट लगे जिसके की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन इज मोर. अब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? दैट एलिमेंट हैज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो जो ए एलिमेंट अटैच होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई. क्लियर? अब ए एलिमेंट का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. तो इसका मतलब ये जो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होने चाहिए थे. अगर मैं देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड, ये देखो, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये ए का एक इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. बट एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर, सो व्हाट हैपन, ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा जो है ए की तरफ चला जाएगा. इस वजह से क्या हुआ? ए के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज. क्लियर? ए विल गेट ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज and carbon will get a partial positive charge. Then this carbon will get a partial double positive charge and this carbon will get a partial triple positive charge. Clear? So it means we can say that the electron is moving away from carbon. So away movement of electron takes place from carbon chain, or you can say that electron is moving towards attached एटम और अ ग्रुप. क्लियर? दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो. जब भी कभी किसी कार्बन चेन में कोई इस तरीके का ग्रुप जुड़े जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, या कोई एलिमेंट ऐसा जुड़े जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन बहुत हाई हो. अगर सपोज कर मैं इसमें क्लोरीन जोड़ देता हूँ, क्लोरीन है या आयोडीन है या फ्लोरीन है, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ ऑक्सीजन की कार्बन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज pretty much higher than that of the carbon. तो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को गैदर करने की कोशिश करेगा. ठीक है? अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर लेगा. जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और इसी इफेक्ट को बोल देते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट. सो वी कैन से दैट इन माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम कार्बन और towards the group or atom attached to the carbon chain. ठीक है? Clear? Okay जी. Now इस movement से होता क्या है? Now because of this movement or due to minus I effect, carbon chain become electron deficient. जब इलेक्ट्रॉन इस ए की तरफ जाने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई. तो कार्बन चेन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड सच कार्बन चेन विल बी more reactive towards the nucleophilic reaction or less reactive towards electrophilic. अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट विल अटैक. और न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट कौन सा था? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है. याद आ गया ध्यान? Nucleophiles are the one which are nucleus loving. Clear? So minus I effect, you will get a nucleophilic reaction. मानो ये वाली बात क्लियर होगी बेटा? Is that clear? जल्दी से इसको एक बार रीड करिए फटाफट. सेकेंड पॉइंट है माइनस आई इफेक्ट. Carbon-carbon chain become electron deficient and such carbon chain will be more reactive towards the
न्यूक्लियोफाइल्स एंड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है, तो न्यूक्लियस loving reagents will trying to attack on this. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है ये, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट प्लस OR2, this is the order. If you have to compare oxygen and this one, so this is going to give you more minus I effect. It means that tendency to withdraw electron is more in that case. Minus effect means tendency to withdraw electron. Electron from carbon chain. Okay. Now OR2 minus NR3, NH3, NO2, SO3H, CnCOOH, X are halogens, OH negative, OH, then NH2, benzene, C6H5, and then the last one, the hydrogen, H. So ये वाला जो सीक्वेंस है ये याद रखना है। आगे हम लोग जब इसके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं ये चीज याद रखनी है, भाई किसका आई इफेक्ट ज्यादा है, किसका आई इफेक्ट कम है, और इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है। क्लियर? गॉट इट? ठीक है जी। अब इसको भी रुक जाओ, एप्लीकेशन पार्ट हम लोग इसके बाद करते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो ये था हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। अब आ जाओ प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट तब हुआ था जब हमारे पास में कोई ऐसा ग्रुप या एलिमेंट अटैच था विच इज हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट प्लस आई इफेक्ट होता है when a such group is attached which is electron donor, or you can say that whose electropositivity is very high. Now, if a group attached to carbon chain is an electron donor, that is, it acquires a positive charge by increasing the electron density. वो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। in a covalent bond, such group are known as plus I effect groups. Clear? Such groups are known as plus I effect groups. Is that clear? Now, in this case, what happens? Shifting of electron takes place from atom, and from the atom, that is, the electrons are moving away from atom and towards the carbon chain. उल्टा हो गया माइनस आई इफेक्ट से। माइनस आई इफेक्ट में क्या था? कार्बन चेन से अपोजिट जा रहे थे इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या है? कार्बन चेन से की तरफ जा रहे इलेक्ट्रॉन। ठीक है? माइनस आई इफेक्ट के अंदर क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। गॉट इट? Any doubt in this case? Now, due to plus I effect, electron density increases on carbon-carbon chain. जब electron density increase हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? Carbon will get a negative charge. Negative charge हो गया, so this reaction will be more. So this will be more towards the reactive. This will be more reactive towards electrophilic substitution, or sorry, electrophilic reaction. Now, carbon is acquiring negative charge. इसका मतलब क्या है? So this reaction will be more towards electrophiles. Electrophiles are going to attack over this. Fine? Is that clear? And plus I effect is directly proportional to the size of alkyl group. चलो इसके बारे में ध्यान से सुनो. Plus I effect is directly proportional to size of alkyl group. It means suppose CH3 is there. Simple CH3 is having some plus I effect, but CH3 is having more. CH3 is having a little bit more. If the number of carbon in a carbon-carbon chain increases, their plus I effect will increase. कितना याद रखो? That means plus I effect is directly proportional to size of alkyl group. ठीक है? Clear? डाउट इसके अंदर?
दूसरी बात आती है प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे कि CH2 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 CH3, ये क्या कोई ब्रांच नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक ब्रांच आएगी, इसके अंदर दो ब्रांच आएंगी। सो जिस कार्बन के अंदर जितनी ज्यादा ब्रांच आती जाएंगी उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वाली बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों क्लियर हो गए, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, सबसे पहले आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन का मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, so stability of carbocation is directly proportional to the number of plus I groups and inversely proportional to number of minus I group। उस कंपाउंड के अंदर उस कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितने कम प्लस आई, जितने कम उसमें माइनस आई ग्रुप अटैच होंगे उतनी स्टेबिलिटी उसकी घट जाएगी। सो इट मीन्स दैट stability of carbocation is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जरा ये देखिए एक बार। दिस इज carbocation, this is also carbocation, this is also carbocation, this is also carbocation। this is tertiary carbocation, secondary carbocation, primary carbocation and simple carbocation, methyl carbocation, ठीक है। अब CH3 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 they are going to show you plus I effect। अब इस केस के अंदर एक दो तीन, एक दो तीन, तीन प्लस आई इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। प्लस आई इफेक्ट कितने हैं यहाँ पे? तीन है। इसके अंदर दो प्लस आई इफेक्ट है, इसके अंदर एक प्लस आई इफेक्ट है, इसके अंदर एक भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब तीन प्लस आई इफेक्ट है, इट मींस दिस टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। सो वी कैन से दैट टर्शियरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर, यस और नो? ये हमें याद रखने पड़ेंगे कौन सी चीज क्या दिखा रही है, प्लस आई इफेक्ट क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट कौन दिखा रहा है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। विच इज गोइंग टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, विच आर गोइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी इसके लिए। अब आ जाइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। कार्बोटाइन इसका उल्टा है। कार्बोकेटाइन में प्लस आई इफेक्ट की स्टेबिलिटी देखी, नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट देखते थे हम लोग। कार्बोएनाइन के अंदर वी हैव टू सी नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप। So more the number of minus I group, more will be the stability. More the number of plus I group, lesser will be the stability। अब आप इसी कंपाउंड को देखिए। फर्स्ट ये कार्बन है, इसके साथ में तीन प्लस आई ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज कार्बोएनाइन। ये कार्बन है, इसके साथ में दो प्लस आई ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज कार्बोएनाइन। दिस कार्बोएनाइन वन group is attached and this is a carboanion, methyl carboanion, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट। तो एज अ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, so one is going to be least stable and this CH3 is the fourth part will going to be the most stable। Clear? Is that clear? So more the plus I group, more the plus I group, lesser the stability of कार्बोएनायन। कार्बोएनायन की लेस स्टेबिलिटी हो जाएगी। Is that clear? Anyone is having any doubt? तो इसके अंदर क्या बनेगा आपके पास? मिथाइल कार्बोएनाइन is most stable and
this tertiary carboanion is least stable because of plus I effect. You can write down the stability like this. Is that clear? भानु बेटा, is that clear? कोई डाउट इसके अंदर? More the number of plus I group, lesser stable the carboanion is. इस बात को याद रखिएगा. ओके जी, चलो फिर नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस. हमने बात करी थी जैसे जैसे डिस्टेंस इस एलिमेंट का, जैसे सपोज को ये कार्बन है, ये कोई भी एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, जैसे जैसे इस एक्स एलिमेंट का कार्बन से डिस्टेंस खत्म बढ़ता जाएगा, ये जो आई इफेक्ट है इट विल डिक्रीज. तो आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. क्लियर? अब हमारे पास सपोज करो ये कंपाउंड है ए, बी एंड सी. ये आई इफेक्ट यहाँ पे माइनस कार्बन है, फ्लोरीन सेकेंड पे अटैच है, फ्लोरीन थर्ड पे अटैच है एंड फ्लोरीन फोर्थ कार्बन पे अटैच है. ठीक है, फ्लोरीन इज गोइंग टू बी द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, सो इट इज गोइंग टू गिव द नेगेटिव चार्ज ओवर द कार्बन चेन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर देगा और इट इज गोइंग टू गिव यू अ, सॉरी, अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैसा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट विल गिव अ पॉजिटिव चार्ज. ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ला देगा आपको यहाँ पे. ठीक, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके टूवर्ड इटसेल्फ इट विल गेन द नेगेटिव चार्ज. यहाँ ध्यान से देखो एक बार आप, ये करेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और खुद, सॉरी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और खुद के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है आपको यहाँ पे. ठीक है, इज दैट क्लियर? कार्बन के ऊपर जो इफेक्ट आता है उसका अपोजिट, कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज आया तो इसका मतलब वो प्लस आई इफेक्ट है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब वो माइनस आई इफेक्ट है. क्लियर? अब कार्बन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट हो, डिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इट विल डिक्रीज. सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ सी this I effect is released because of the more distance between the charge and the group. So minimum distance of fluorine, maximum minus I effect, minimum negative charge. Minimum will be the negative charge and maximum will be the stability. So stability of this compound A is maximum than that of the compound C. Is that clear? Anyone is having any doubt in this? हाँ भाई भानु, कोई डाउट आया इससे बच्चे? क्लियर हो गई ये वाली बात? जल्दी बताओ. ओके, चलिए ये थी हमारे पास थर्ड इफेक्ट. अब इसका फोर्थ इफेक्ट करते हैं हम लोग, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं. फोर्थ इफेक्ट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. याद रखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ. Acid are those which can donate H positive ion. So they are H positive ion donor and they can be electron acceptor. ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना. तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप,
number of minus I group increases, then acidic strength increases. Clear? And number of plus I group increases, acid strength decreases. It means acidic strength is directly proportional to minus I effect, or you can say that number of minus I group, and inversely proportional to number of plus I group. ये बात याद रख लो. फाइन, क्लियर. चलो एक इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं. एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, दिस कंपाउंड, और एक कंपाउंड है मेरे पास ये. अब इन दोनों में से बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, कम किसकी होगी. ठीक है. अब सपोज करो इफ इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव इसमें से बाहर निकल जाता है, तो क्या बनेगा. दिस विल मूव आउट, so it will form CH3C डबल बॉन्ड O. मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल बॉन्ड O. O नेगेटिव, ये बन गया. ठीक है. और यहाँ पे अगर H पॉजिटिव बाहर निकलता है तो क्या बनेगा. CH2C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, एंड हियर वी हैव Cl. ठीक है. क्लियर. अब यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में ग्रुप कौन सा अटैच है मेरे पास, जो ध्यान से देखो. ग्रुप अटैच्ड इज दिस वन CH3, और यहाँ पे अटैच है क्या, Cl. अब CH3 और Cl, CH3 is having plus I effect, so plus I effect of CH3, and Cl is having minus I effect of Cl. Acidic strength is directly proportional to minus I effect. It means this compound is having more acidic strength than that of the first. So acidic strength of second is more than that of the first one. Is that clear? Is that clear? Yes or no? This compound name is 1-chloroethanoic acid, and this is simple ethanoic acid. 1-chloroethanoic acid is more acidic than that of the simple ethanoic acid. Is that clear? Yes or no? Okay, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं फटाफट हम लोग. So find out which is more acidic, or arrange in acidic strength. कंपाउंड है मेरे पास CH3, CH2, CH, COOH, A. B is CH3, CH, CH2, COOH.
and C is CH2, 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 C, OH, this one. अब जल्दी से बताओ इसके अंदर क्या होगा फटाफट. As fluorine is attached, fluorine क्या दिखाएगा? Fluorine is going to give you which type of effect? Plus I effect or minus I effect? It will give you minus I effect. ठीक है. Minus I effect का मतलब क्या है? Acidic strength will increase. तो तीनों में फ्लोरीन है तो माइनस आई इफेक्ट वाला पंगा तो खत्म हो गया. बट अगर देखा जाए कार्बन से फ्लोरीन का डिस्टेंस will increasing. So distance is minimum distance, more will be the I effect, and maximum distance, lesser will be the I effect. Clear? So minimum distance of fluorine from COOH, maximum minus I effect. Minimum distance is in case of A, I will write minimum distance of fluorine from COOH more will be the minus I effect. It implies A is more acidic than B than C. This is the acidic strength. Clear? Got it? इसमें कोई डाउट? चलिए फटाफट अब देखते हैं हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में. एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा कर दो. फोर्थ आता है मेरे पास, सॉरी फोर्थ है, फिफ्थ आया, एक सेकेंड, हाँ फिफ्थ आया, बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ क्या कहती है भाई? बेसिक स्ट्रेंथ को मैं ऐसे लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, नंबर ऑफ प्लस आई group and inversely proportional to number of minus I group, opposite to that of the acidic strength. Obvious सी बात है. बेस का मतलब क्या होता है? बेस means which can donate OH negative ion or which can accept H positive acceptor, or you can say it is electron donor. इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, जो ग्रुप, वो क्या हो जाएगा? बेसिक ग्रुप हो जाएगा. तो नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ. अब प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट में द कार्बन इज गोइंग टू हैव नेगेटिव चार्ज, द एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना ग्रुप को. ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं फटाफट. एक टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल. अब बताओ इन तीनों में से which is going to have maximum basic strength. Arrange them in, question is arrange them in basic strength. अब देखा जाए इन तीनों में
this one, this, and this. Maximum plus I group. This is suppose A, B, and C. Basic strength is directly proportional to plus I group. 3 plus I group, 2 plus I group, 1 plus I group. Fine. So answer will be A, B, and C as number of plus I group is directly proportional to basic strength. Clear? Any doubt up to this point? Is that clear? Any doubt in this? ओके जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। सॉरी, ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन वह इथाइल amine is more basic than aniline. Why? Why ethylamine is more basic than the aniline? बेसिसिटी के लिए क्या नेसेसरी है? प्लस आई ग्रुप। इथाइलामीन का मतलब क्या है? CH3, CH2, NH2 एंड एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। अब इनमें से बता दो भैया प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? ओहो, प्लस आई इफेक्ट of ethyl is more than that of the benzyl. Ethyl is more, so ethyl amine is more basic. Clear? Second question. सपोज करो ये कंपाउंड है NH2Cl and CH3NH2. Now, which is more acidic, or compare their acidic strength? इसको करो होमवर्क में। और एक तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन basicity explain basicity order in aqueous solution and in liquid phase of this.
CH3, CH2, NH, then और I will write in short form. थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट बनाते हैं. This is ET, 2NH. ET means ethyl group है ये. Then ET3N, then ETNH2. एक तरीके से ये सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी, एंड दिस वन इज प्राइमरी. तो इसके अंदर हमें बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए इन एक्वा सॉल्यूशन और इन लिक्विड फेज बोथ. ठीक है, बस एक थोड़ा सा याद रखना, एक स्टेरिक हिंड्रेंस नाम की चीज आती है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, स्टेरिक हिंड्रेंस. सोच के देखना इसको, कल इस पे लिए बात करेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है. ये क्वेश्चन है. ठीक, एक क्वेश्चन और करो फटाफट. कर रहे हैं आपको बेसिसिट ऑर्डर इन फॉलोइंग, और which compound is most acidic. This one. ये है हमारे पास OH, NH2, and this. ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है, इसके बारे में पता लगाओ. So this is going to be the 3 questions for homework. ठीक है, बाकी इंडक्टिव इफेक्ट इज फिनिश्ड. इतना ही आपको इंडक्टिव इफेक्ट में करना है, बहुत अच्छा है. ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर वालों? So that is all for today. That is all in the inductive effect. So we'll next class we will do mesomeric effect and resonance effect or resonance effect, plus R effect, plus M effect. ये सब चीजें क्या होती है, उन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं.